वेलकम टू वाई कम्युनिटी फ्रेंड्स। सो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रैक्टिस करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर, मीन इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ कि एट व्हाट पोजीशन यू आर स्टैंडिंग when it comes to a particular chapter. For example, if I have done with the theory classes, I have completed all the assignments, so where am I standing? Will I be able to solve the questions from the CAT paper? So if you want to check yourself, so you are at a correct place. So in this video, it's a kind of a revision video wherein we'll be taking the previous year questions from the chapter of profit and loss. So without taking much of your time, let's start with the questions. So here we have the first question for you. The first question is, it's from CAT 2017's paper. Now, before we do any of the question, as earlier told, the mechanism or the methodology that we will be using to solve the question, I call it as DRS. Decode, reshape, and then solve it. Alright, so here we have the first one. So the first question says that Mayank buys some candies for rupees 15 a dozen and an equal number of different candies for rupees a dozen. Okay. So from the first line, what we are able to find it out, ki how much, whatever quantity of candies he has bought this one. Suppose this is the candy A. Candy A he has bought some dozen. The same quantity of candies is also bought by Mayank, ठीक है, which is costing rupees 12 a dozen. यानी दोनों का cost क्या है, same है. If the quantities are same, okay, so what I'll do, if suppose I'm mixing both the quantities, can't I say that, look, I have some candies which are 15 rupees dozen and some candies which are 12 rupees dozen. Both the quantities I have, both the candies I have bought of same quantity. अगर ये डजन होगा एक डजन तो ये भी एक डजन है. ओके, सो मान लो कि आपने एक ही डजन ही खरीदा. अगर आपने ये एक डजन खरीदा है और एक ये डजन खरीदा है, so total money that you have to bear will be what? 15 plus 12 means total 27 rupees. And in 27 rupees you are getting 2 dozen. So what will be the price of the dozen? So price of a dozen will be 13.5. So we can say that Mayank has bought some of the candies at a cost price of 13.5 rupees. He sells all for rupees 16.50. His cost price, okay, I'm writing it. The cost price of the candies is 13.5 rupees and the selling price that he's getting is 16.5. So what is the profit he is getting? The profit margin is of 3 rupees. Okay, you bought it for 13.5 and you are charging 16.5 from your customer. It means that on every dozen, the Mayank is making a profit of 3 rupees and makes a profit of rupees 150. If on every dozen, if suppose we are making a profit of 3 rupees, in order to make a profit of 150 rupees, how much dozen one should get? Simply 50 dozen. अगर आपने 50 डजन खरीदा, in every dozen if you are making a profit of 3 rupees, so in order to make a profit of 150, the quantities or the dozens required will be what? It will be 50 dozen. So answer to this question is what? It's 50. Okay, so if you'll see, अगर आप क्वेश्चन को समझते हो ना, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को रीशेप करते हो, सॉल्विंग इज वेरी सिंपल, ओनली 1 2 3 लाइंस, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी solved very quickly if you understand the question. So that's why I emphasize very much on understanding the question. Before writing anything on the paper, okay, one should be very clear with the question, means in which direction we have to think. अगर ऐसा clarity नहीं हो पा रहा है, ठीक है, when you are practicing there will be another scenario, but if you are suppose in the exam scenario, okay, and when this clarity is not getting developed, don't wait for those questions or don't get stuck in those questions. Rather leave that question at that time and move ahead. Okay, if time permits, we'll come back again to that question. So answer to the first question is what? It's 50. Okay, very basic question, right? Let's see the next question. Again, question number 2 is from again CAT 2017. Okay, CAT 2017 had a lot of questions from profit and loss chapter. So if a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%? Now, before doing this question, first of all, let's get very clear with the first line itself. The first line says that even after giving a discount of 15%, the shopkeeper is still making a profit of 2%. ये कैसे हुआ होगा? ये possible कैसे?
ठीक है, अगर मैं डिस्काउंट दे रहा है एंड स्टिल आई एम मेकिंग एबल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 2%, ये इसलिए हुआ होगा, सपोज कि मान लो मैंने एक आर्टिकल खरीदा, सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज दिस, ठीक है, देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मार्किंग अप इट्स प्राइस बाय सम परसेंट. If suppose this is the cost price, ठीक है, so I'll be raising the price of this article, so I might have raised it by some price, so now this is the bigger price, this is my cost price and I have marked its price, ठीक है, by what percentage we don't know actually, then we are giving a discount of 15% on it, ठीक है, after giving a discount of 15%, overall the profit margin we are having is 2%, ठीक है. First of all we increase the price, or we increase the price of cost price to get the mark price, then we are offering a discount of 15%, and overall as a result what we are getting, we are enjoying a profit of 2%. So can we say this is an example of successive change? Yes, we can. Why? Because same thing is getting increased, or same thing is getting changed again and again. So if the same value is getting changed again and again, then we can use the concept of successive change. So for successive change, the formula we have is what? It's a plus b plus ab upon 100. But be very careful with the sign. If it's an increment, okay, it has to be considered as positive. If there is a decrement, it has to be considered as negative. Now first of all, there is an increment, but increment of what percent actually we don't know, or actually हम ये बोल सकते हैं we don't have the value of a. So let's take a itself. This increment means from cost price to mark price, ये जो increment है, I'm assuming it a percent only. What is the value of b? The value of b is minus 15. How come it is minus 15? Because there is an overall reduction. From this price there is an overall discount, so discount is negative, so it will be minus 15. So a plus b plus a into b, so a into minus 15 upon 100. Effective value as per question is what? It is 2. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ये क्या हो जाएगा? This will be 3 times and this will be 20 times. So see, this is 20, this is minus 3 by 820, ठीक है. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? It will become 20 minus 3, so it will be 17a upon 20. Okay, and if I'll move that 15 to that side, it will be 17. It means that the value of a will be what? A is nothing but it is 20%. Means we are increasing the price, or we are increasing the cost price by 20% in order to get the mark price. ठीक है, अगर आपको मार्क प्राइस चाहिए, आप क्या कर रहे हो? इसको 20% से इंक्रीज कर दो. सो नेक्स्ट द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सो हमने किया क्या? सपोज आई बॉट दिस आर्टिकल फॉर 100 रुपीज सपोज, ठीक है, देन वी आर इंक्रीजिंग इट्स प्राइस by 20%, so this will become the mark price. So mark price is what? It is 120. So if my mark price is 120, so at what price I need to sell this article so that I make a profit of 20%. तो अगर मुझे profit 20% का चाहिए, it means that my selling price should also be 120. तो अगर मेरा selling price और mark price दोनों same है, in which scenarios your selling and mark price should be same? When discount offered is 0. So what we have to do? We have to sell at the retail price itself. ठीक है, इसे रिटेल प्राइस में ही चिपका दो, यू विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक है, अगर आपको सक्सेसिव चेंज से नहीं करना, यू फील अरे सर सक्सेसिव चेंज तो बहुत बोरिंग कंसेप्ट है, क्या कुछ और नहीं है? यस, देयर आर अदर वेज आल्सो. कैसे? विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव थ्योरी फैक्टर. ओके, सो सी, इफ द सेलर गिव्स द डिस्काउंट ऑफ, so फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ उसका कॉस्ट प्राइस होगा. सो सपोज ये कॉस्ट प्राइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी इंक्रीजिंग इट. तो अगर मान लो उसका इंक्रीज किया, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे नहीं पता, सो समथिंग विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ इट. कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज सीपी रुपीज, फिर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ होगा. ओके, और लेट्स टेक समथिंग एज कॉस्ट प्राइस. सो आई एम टेकिंग, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100x फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 100x. सो 100x इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसका है? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बिकॉज मेरा जो कॉस्ट प्राइस था उसको मार्क प्राइस बनाने के लिए मैंने कुछ प्राइस इंक्रीज किया होगा. सो दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर टू इंक्रीज द मार्क प्राइस. देन आई हैव दिस प्राइस और दिस इज माय मार्क प्राइस. देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15%. सो डिस्काउंट ऑफ 15% मींस व्हाट विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? इट विल बी 0.85. After giving a discount of 15%, the overall profit that we are bearing is what? It will be 1.02. Why it is 1.02? ठीक है, 1.02 of what?
ऑफ 100x, बिकॉज कॉस्ट प्राइस हमने 100x एज्यूम किया था. 15% का डिस्काउंट के कारण मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, 2% प्रॉफिट के कारण मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो ये 100x तो कैंसिल हो गया. सो अल्टीमेटली विल हैव मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज व्हाट, इट विल बी 1.02 अपॉन 0.85. सो एक्चुअली ये क्या है, 6/5. So what does 6/5 means? 6/5 means 1/2. So if my multiplying factor is 1.2, 1.2 multiplying factor कब आता है? 1.2 multiplying factor तब आता है when I'm increasing the price of anything or when I'm increasing the value of anything by 20%. 1.2 multiplying factor का मतलब क्या है? Increment by 20%. ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका मतलब क्या है कि इंक्रीमेंट 22% का हुआ है. यानी आपने किसी भी प्राइस को 100x में खरीदा and then you are increasing it by 20%. So now the mark price of that article is what? It is 120x. And what we want a profit of 20% itself. तो अगर मैंने 20% से बढ़ाया है, इसको नहीं लिखते हैं, सॉरी, अगर मैंने 20% से बढ़ाया है तो मैं क्या करूंगा, मार्क प्राइस पे बेच दूंगा. अगर आपने मार्क प्राइस पे ही बेच दिया, सो व्हाट विल हैपन, you'll be making a profit of 20%. Okay, so the correct answer to this question will be what? It will be sell at retail price itself. Next we have is question number 3. In a market, the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. Okay, now as this is a chapter of percentage, so I am assuming, okay, so let the price of good quality mangoes be 20x and that of ये bad qualities will, sorry, ये तो किसका है, medium quality is half that of good mangoes. और good mangoes का, sorry, इसका प्राइस रख लेते हैं, sorry, let's take the reverse of it. So we have good qualities and medium quality. तो जो good quality है, let the price of that be 20x, और जो medium quality है, let us take the price of it as 10x. ठीक है, from the first line मुझे यही मिल रहा है ना. In a market, the price of medium quality mangoes is half that of good mangoes. Next, a shopkeeper buys 80 kgs of good mangoes and 40 kg of medium quality mangoes. So we have 80 kgs of good mangoes, okay, I'm highlighting this point here itself, and 40 kgs of medium quality mangoes from the market, and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. So his overall profit is. तो यहां पर देखो, इफ यूल सी कि आपने 80 kg गुड मैंगोज खरीदा है, 40 kg मीडियम क्वालिटीज खरीदा है, यानी इन टर्म्स ऑफ रेशियो कैन आई से दैट कि ये 2:1 के रेशियो में 2 पार्ट्स गुड मैंगोज खरीदा गया है, 1 पार्ट मीडियम क्वालिटी मैंगो खरीदा गया है. अगर 2 पार्ट्स आपने गुड क्वालिटी मैंगो खरीदा होगा, सो हाउ मच मनी यू विल बी बियरिंग टू बाय. प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी मैंगोज इज व्हाट, इट इज 20x. अगर मैंने ये 2 पार्ट्स खरीदा है तो इसका इफेक्टिव प्राइस क्या होगा, इट विल बी 40x. ठीक है, इफेक्टिव प्राइस विल बी 40x, 2 into 20x, एंड दैट ऑफ मीडियम क्वालिटी वी हैव बॉट इट 1 पार्ट और उसका प्राइस क्या है 10x. सो द मनी दैट वी विल बी बियरिंग इज 10x. So this is the total money that we are bearing. Okay, so the total cost price is what, it is 50x. Now what we are doing, all at a common price which is 10% less than the price of the good quality mangoes. तो अगर मैंने 20x में हमने खरीदा है, ठीक है, if we have bought it for 20x, we will be selling at what, the selling price will be what, selling price will be simply 10% less than it, which will be 18x. So for all the mangoes, the selling price is what, it will be 18x. Total how many mangoes we have, 2 parts of this and 1 part of this, यानी total 3 parts. अगर एक पार्ट की प्राइस 18x है तो 3 पार्ट्स की कितनी होगी. So this is what, this is the total cost price and the selling price will be what, it will be 54x. We bought it for 50x and we are selling it for 54x. आराम से आप बोल सकते हो there is a profit of 8%. या आप यहां से फिर से कैलकुलेट कर लो. So if cost price is this and selling price is this, what will be the profit value? The profit is the difference of selling price and cost price, so it will be 4x. ये जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने कॉस्ट प्राइस बियर करने पर हो रहा है, then we are bearing the cost price of 50x, and in order to get the percentage simply multiply by 100. ये x cancel हो जाएगा 5 के टेबल में, ये 2 times में, so the answer is what, it's 8%. Okay, so we will be making a profit of 8%. Alright, again this was question number 3 from CAT 2017.
अगेन क्वेश्चन फ्रॉम कैट 27। अब ऐसा नहीं है देखो कि 2017 में सिर्फ एक ही पेपर था, उसमें इतने सारे क्वेश्चन थे। इन 2017 वी हैड ओवरऑल 2 सेट्स, सो 2 सेट्स में मिलाकर इतने क्वेश्चन। ओके, स्टिल आई हैव स्किप्ड सम ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने थे, सम ऑफ द क्वेश्चन आई हैव स्किप्ड। इफ फातिमा सेल्स 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit। ठीक है, अगेन द सेम सिनेरियो, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया, यानी ऐसा बोला गया कि सपोज दिस इज द कॉस्ट प्राइस, शी विल बी रेजिंग इट्स प्राइस टू मेक द मार्क प्राइस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%। ओके, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 40% शी इज एंजॉइंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल कितने का प्रॉफिट एंजॉय करिए, शी इज एंजॉइंग और मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो कैन आई गेट दिस वैल्यू? अगेन आई डोंट नो कि व्हाट दिस वैल्यू इज, सो आई विल टेक द वैल्यू एज a, दिस इज डिस्काउंट, so it will be -40 plus so it will be minus effectively 40 times of a upon 100. Simply I am using the formula of successive change, a plus b, okay, plus a into b by 100, but be very specific with the signs. इंक्रीमेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, डिक्रीमेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ये डिक्रीमेंट है इसलिए इसको नेगेटिव कंसिडर किया। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी 20। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बी 2/5, राइट? सो इट विल बी 5a minus 3a, so it will be 3a/5 equals to 60. So the value of a will be what? A will be actually 100%. Okay, it means that in order to get what Fatima has done, she is buying at certain price and increasing the price by 100%. यानी अगर 10 rupees में खरीद रही है, she is marking up at 20 rupees. If she is buying at 200 rupees, she will be marking at 400 rupees. Okay, next. While selling the rest, how much discount should be given on the printed? Oh, sorry. I skipped this line. 10 of these toys are destroyed in fire. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? ठीक है, तो एक बार हमें चलो ये मिल गया कि what is the value of 100%. अब क्या करेंगे? Simply if we have to solve the second part, तो second part को solve करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करो, simply write the ratio of CP and SP for each case. ठीक है, CP और SP for each cases. So what are the different cases here? So first of all, first case is she bought 60 identical toys but she is able to sell only 10 of them. ठीक है, she is buying 60 identical toys but she is able to sell only 50 of them. मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस शी इज बियरिंग ऑफ 60 आर्टिकल्स, बट जब वो सेल करने के गई शी हैज ओनली 50 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स आर डिस्ट्रॉयड। फिर क्या हो रहा है? देन शी इज रेजिंग द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देन शी इज रेजिंग द कॉस्ट प्राइस बाय सर्टेन परसेंट। कितने परसेंट से रेज करिए? 100% से। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर कॉस्ट प्राइस बाय 100%, इट मींस दैट कि अगर आपने किसी आर्टिकल को 1 रुपी में परचेज किया है, यू विल बी सेलिंग इट एट 2 रुपीज। इफ यू आर इंक्रीजिंग योर कॉस्ट प्राइस बाय 100% टू मेक द मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का मतलब क्या है? कंसिडरिंग कि अगर मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, आई बॉट इट फॉर 100, एज आई हैव इंक्रीज बाय 100%, सो माय मार्क प्राइस इज 200 रुपीज। तो मैं क्या कर रहा हूं? सिंपली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख रहा हूं फॉर ईच केस। सो सेकेंड केस क्या है? व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस और व्हेन आई एम मार्किंग अप द कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, while selling the rest, how much discount she should be given? तो यहां पर कुछ डिस्काउंट देगी। सो डिस्काउंट के कारण कुछ रेशियोज आएगा ना, मींस आपने किसी और प्राइस पे खरीदा होगा एंड यू माइट बी गिविंग अ डिस्काउंट, तो इसके कारण कोई फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, सो आई एम नॉट राइटिंग दिस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सीपी अपॉन एसपी आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज आई डोंट नो कि कितने परसेंट का मैंने डिस्काउंट दिया। ओके, एंड ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग? यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ओवरऑल इफ वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट डज इट मीन? अगर मैंने किसी आर्टिकल को 5 रुपीज में खरीदा, अगर मैंने किसी आर्टिकल को 100 रुपीज में खरीदा है, आई माइट बी सेलिंग इट एट 120 रुपीज। या अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखो, इट मस्ट बी 5/6। व्हेन एन आर्टिकल इज बॉट फॉर 5 एंड इज सोल्ड फॉर 6, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 दिस 3 विल बी कैंसिल्ड। ओके, तो जब आप ये 3 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 25/18। तो एक्चुअली ये जो 25/18 है,
ठीक है, ये जो 25/18 आ रहा है, एक्चुअली दिस इज द रेशियो ऑफ CP अपॉन SP वी आर गेटिंग विच इज 25/18. सो ये 25/18 कहां का रेशियो है, यहां का. एक्चुअली ये यहां का वैल्यू है. अगर मान लो आपने इसको x भी मान लिया होता ना, सो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर. तो ये जो मेरे पास रेशियो आ रहा है, ये रेशियो क्यों आ रहा है, बिकॉज आई बॉट इट फॉर सर्टेन प्राइस एंड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट आई एम सेलिंग इट फॉर 18 रुपीज. तो मैंने खरीदा है 25 रुपीज में से, और मैं कितने में सेल कर रहा हूं, आई एम सेलिंग इट फॉर 18. आई बॉट इट फॉर 25 एंड आई एम सेलिंग इट फॉर 18. तो मैंने कितने % का डिस्काउंट दिया. अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, यू आर बाइंग इट एट 100 एंड यू आर सेलिंग इट फॉर 72, यानी आपने 28% का डिस्काउंट दिया. क्या अगर ऐसे नहीं करना है, सो क्या करो, योर कॉस्ट प्राइस इज 25 एंड सेलिंग प्राइस इज 18, मतलब यू आर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 7 रुपीज in when the cost price is 25 in order to get the percentage multiplied by 100. So the answer to this question is what, it's 28%. देखो ये टोटली डिपेंड करता है ना आप क्वेश्चन को कैसे समझ रहे हो. एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा वे है. देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, बट इफ यू इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शंस, अगर मतलब डेसिमल्स के अलावा अगर आप फ्रैक्शंस में चले जाओगे ना, इट विल बी मच इजियर फॉर अस. एंड दिस इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म. ठीक है, ये जो रेशियो है CP अपॉन SP का फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, आई विल बी यूजिंग अ लॉट. मैं ये बहुत ज्यादा यूज करता हूं. तो आप ग्रेजुअली देखना ये कितना इफेक्टिव है. ये जो मेथड है ना, आई कैन से ये तो रामबाण है, पनीशिया है. कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए, फॉल्टी बैलेंस ऑफ क्वेश्चंस के लिए. जैसे कैट 2023 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ फॉल्टी बैलेंस. तो बहुत सारे बच्चे उसको सक्सेस चेन से करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, मतलब देयर आर मेनी वेज. ठीक है, बट द बेस्ट वे इज व्हाट, सिंपली राइट द रेशियोज ऑफ CP अपॉन SP फॉर ईच सिनेरियो. देयर विल बी अ क्वेश्चन जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, देखना कैसे यूज करेंगे. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, मुकेश परचेज्ड 10 बाइसिकल्स इन 2017. ठीक है, ऑल एट द सेम प्राइस. ठीक है, तो 10 बाइसिकल्स ही हैज परचेज्ड एट सेम प्राइस, मतलब सबका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम. He sold 6 of these at a profit of 25% and the remaining 4 at a loss of 25%. ठीक है, हो क्या रहा है, उसने 6 आर्टिकल्स को, ठीक है, he sold at a profit of 25% and the remaining 4 are sold at a loss of 25%. So what do you think is the overall loss and profit? अगर आपने कुछ आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट में बेचा है, कुछ आर्टिकल्स को 25% लॉस में बेचा है, तो ओवरऑल आपने क्या किया. So overall what we can do, we can use the concept of allocation. Okay, how come? So suppose these are the cycles which are sold at profit and B represents the cycle which is sold at a loss. तो जो cycles profit में बेचे गए, how much profit we had made? We have made a profit of 25%. And जो cycle loss में बेचे गए, उसमें कितना loss हुआ है? Loss of 25%. Every time remember, loss should be represented by a negative value. ठीक है, लॉस शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव वैल्यू. एंड इन विच रेशियो, ठीक है, द रेशियो इज 6/4, सो इट विल बी 3:2. सो व्हाट शुड बी दिस वैल्यू. ठीक है, ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, तो वी कैन बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन. या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने क्या किया, आई बॉट सम राइस विच इज कॉस्टिंग मी 25 रुपीज पर केजी, और उसे हमने कितना खरीदा, 3 kgs. देन आई बॉट सर्टेन राइस दैट वाज कॉस्टिंग मी -25 रुपीज पर केजी, और ये मैंने कितना खरीदा, 2 रुपीज. सो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ राइस पर केजी. तो पहले आप देखो हाउ मच मनी विल बी पेइंग टू द शॉपकीपर. इफ आई वांट टू बाय दिस राइस, सो द मनी विल बी 75 रुपीज, 25 into 3. If I want to buy this rice, the money will be -50 rupees, 25 into 3 and -25 into 2. ठीक है, अगर आप टोटल क्वांटिटी देखोगे तो टोटल क्वांटिटी कितना है, 3 kgs ऑफ दिस एंड 2 kgs ऑफ दिस, यानी डिवाइडेड बाई 5. So rice per kg will be what? It will be 75 minus 50, which is 25. So it will be 5%. So overall in this transaction, okay, we are making 5% profit. We are purchasing, we are selling some of the article at 25% profit and some of the articles are sold at 25% loss. But जब आप देखोगे overall scenario, there will be a profit of 5%. Okay, next. If he made a total profit of rupees 2000, then the purchasing price of bicycle is, ठीक है, देखो
अगर 10 बाइसिकल्स का टोटल प्रॉफिट 200 रुपीज है तो एक बाइसिकल का टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, विल इट बी 200 रुपीज। ठीक है, अगर टोटल आई हैड 10 साइकिल्स सोल्ड एंड द टोटल प्रॉफिट इज 20,000, सो प्रॉफिट फॉर वन साइकिल विल बी 200 रुपीज। एंड एज पर द ये हमने जब सॉल्व किया तो प्रॉफिट का मार्जिन कितना है, इट इज 5%। सो इट हैज बीन गिवन दैट 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज दिस, 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज 200। तो अगर 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज 200, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सिंपली इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 4000। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर 5% ये है तो 10% कितना होगा, इट विल बी 400। अगर 10% किसी चीज का 400 है तो वो वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 4000। और सिंपली इसको सॉल्व कर लो। नहीं तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, 5 whenever the symbols come of percentage, it's 1/100 of into CP, which is equals to 200. 5, this is 20, so the value of CP is what, it's 4000. ठीक है, cat 29, very a good question to solve. Okay, I was trying to say something else, लेकिन ठीक है। Question number 6, again from cat 2019's paper. A shopkeeper sells 2 tables, each procured at a cost price of P. So what the shopkeeper has done, he has bought 2 of the tables and cost price of both the tables is what, it's P rupees to Amal and Asim. Okay, so Amal is there and Asim is there. ठीक है, the cost price of both is P rupees. Next, Amal and Asim at a profit of 20% and a loss of 20% respectively. Okay, तो जब ये शॉपकीपर ने अमल को बेचा, ठीक है, सो ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अगर P रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो 20 रुपीज का ये होने पर क्या होगा, विल इट बी 1.2 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, 20% प्रॉफिट, यानी आपको P की वैल्यू को 20% इंक्रीज करना है। एट द सेम टाइम when he is selling to Asim, okay, so there is a loss of 20%. It means that Asim might have bought it at 0.8 P. Amal bought it for 1.2 times of P and Asim bought it for 0.8 times of P. ये प्रॉफिट में इसने खरीदा, इसको प्रॉफिट, और दिस टाइम देयर इज अ लॉस। नेक्स्ट, Amal sells his table to Bimal at a profit of 30%. Amal क्या कर रहा है, now Amal is selling this product at a profit of 30%. So for Amal this is the cost price. So Amal is selling this product at a profit of 30% to Bimal. So जब ये Bimal को sell करेगा, so for Bimal what will be the price at which Bimal will be buying, it will be 1.3 times of 1.2 times of P. 1.3 multiplying factor तब हुआ when it is being sold at a profit of 30%. ठीक है, और 1.2 P it's the cost price that Amal has bid, क्योंकि शॉपकीपर ने 20% लगाकर उसको बेचा, राइट। सो इट मीन्स दैट इट विल बी 13 into 12, so 130 and 26, so it 1.56 times of P. Next, while Asim sells his table to Baron at a loss of 30%. Okay, so Asim is selling to Baron at a loss of 30%. So loss of 30% यानी multiplying factor क्या होगा, 0.7, so it will be 0.7 into 0.8 times of P. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0.56 P। ठीक है, इफ द अमाउंट्स पेड बाय बिमल एंड बरोन आर x, सो ये x है एंड दिस वन इज y, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस y अपॉन p। ठीक है, वेरी सिंपल, 1.56 minus 0.56 p will be what, it will be 1p, 1p upon p will be p, oh sorry 1, so आंसर क्या हो गया, 1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फ्रॉम कैट 2019। ऑन सेलिंग अ पेन एट 5% लॉस एंड बुक एट 15% गेन, करीम गेन्स ₹7। ओके, वेरी गुड। इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन एंड बुक एट 10% गेन, ही गेन्स ₹30। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। बहुत बार बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर क्या हम इसमें सक्सेसिव चेंज लगा सकते हैं। देखो, सक्सेसिव चेंज इज एप्लीकेबल इफ द सेम वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड अगेन एंड अगेन।
सेम वैल्यू, मतलब अगर किसी चीज का प्राइस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, इफ द सेम सैलरी इज गेटिंग इंक्रीज डिक्रीज अगेन एंड अगेन, देयरइन वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेस चेंज. बट हियर वी हैव टू डिफरेंट आर्टिकल्स. ठीक है, वी हैव अ पेन एंड वी हैव अ बुक. सो व्हाट आई एम टेकिंग, लेट द कॉस्ट प्राइस बी पेन बी 100p रुपीज. ठीक है, एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है 100p और एक बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है 100b. ठीक है, 100p and 100b are the respectively cost price of pen and book. Now pen is sold at a loss of 5%, so 5% loss यानी it will be minus 5p. ठीक है, इसके 5% का लॉस हो रहा है, so it will be minus 5p. and book at a gain of 15%, 15% gain यानी it will be 15b. So Kareem gains ₹7. So overall इसके क्या हो रहा है, करीम इज गेटिंग 7 रुपीज. ठीक है, इसको 5 रुपीज का लॉस में बेचा, 5% के लॉस में, इसको 15% के प्रॉफिट में, ओवरऑल 7 रुपीज का प्रॉफिट है. इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, तो अगर पेन को भी 5% गेन में बेचेगा इट विल बी 5p प्लस, एंड बुक एट 10% गेन, सो इट विल बी 10b. द गेन मार्जिन विल बी ऑफ 13 रुपीज. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी अगर मैं इस इक्वेशंस में से सिंपली p को एलिमिनेट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, आई विल बी गेटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक. तो क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. सो 15 प्लस 10 इज 25b which is equals to 20. So we'll have the value of b as what, it will be 4/5. The value of b is 4/5. तो अगर b की वैल्यू 4/5 है, what will be the value of 100b then? It will be 100 times of 4/5, which is 80. Okay, so question number 7, the correct answer is what, it's 80. Again very doable question. ठीक है, and we can expect this kind of question in other exams. ठीक है, हो सकता है कैट में ना देखने को मिले, but the questions of CAT is आपको दूसरे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं. SRCC है, ठीक है, then you have CUET, वहां पे देखने को जरूर मिल सकते हैं. A man buys 35 kg of sugar and sets a mark price in order to make a 20% profit. Very good. He sells 5 kg at this price, 15 kg at a discount of 10 price. Accidentally 3 kg of sugar is wasted. He sells the remaining sugar by raising the mark price by p% so as to make an overall profit of 15%. Then p is nearest to. ठीक है, p is nearest to. चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम द प्राइस ऑफ शुगर एज 100x. लेट द प्राइस ऑफ शुगर इज 100x. ठीक है, इफ वी वांट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, तो पर केजी प्रॉफिट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 15x. अगर पर केजी प्राइस 100x रुपीज है तो पर केजी प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15% ऑफ इट यानी 15x. देयर आर टोटल 35 kg ऑफ शुगर, सो टोटल प्रॉफिट मार्जिन शुड बी व्हाट, टोटल प्रॉफिट शुड बी 15x times of 35. So 35 is 350 and add 175. So 350 and 175, 450, 550, 525 I guess. So it will be 525x. So overall मैं जब मैं सारा शुगर बेच दूं ना, ठीक है, so मैन को प्रॉफिट कितना होना चाहिए, he should be making a profit of 525x रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. He sells 5 kg at this price. कौन से प्राइस में, ठीक है, he has marked the price by 20%. he bought it for 100x, लेकिन इसका मार्क प्राइस उसने कितना किया हुआ है, मार्क प्राइस इज 120x. so 5 kg of this is being sold at this price only. तो अगर आपने इस प्राइस पे शुगर को बेचा, how much profit you will be making? we bought it for 100x, okay, and we are selling it for 120x. so per kg the profit will be of 20x. तो 5 kg में टोटल प्रॉफिट क्या होगा, it will be 5 into 20x. So it will be 100x. So 100x का प्रॉफिट आ गया यहां से. नेक्स्ट, and 15 kg at 10% discount. Okay, if the mark price is 120x and if you are offering a discount of 10%, it means that the selling price will become what, it will become 108x. After giving a discount of 10%, the selling price will become 108x. Means on every kg there is a profit margin of 8x rupees. 15 kg शुगर है आपके पास, so 15 kg का टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 15 into 8x, so it will be 120x. Accidentally 3 kg of sugar is wasted. तो अभी तक देखो कितना शुगर चला गया,
5 kgs आपने 20% के प्रॉफिट में बेचा है, 15 kg आपने बेचा है 8% के प्रॉफिट में, so 15 plus 5 20 kg is gone and 3 kg of sugar is getting wasted. So अभी तक total 23 kgs of sugar has been gone. So out of 35 now we are left with how much quantity of sugar? 35 minus 23, which is 12 kgs. So now we have 12 kgs of sugar left. And how much profit is still to be made? ठीक है, how much profit is still to be made? अभी तक we have made a profit of 220x और हमें टोटल प्रॉफिट कितना करना है? 525x का. तो इस 12 kgs में मुझे कितने का प्रॉफिट करना पड़ेगा? 12 kgs में टोटल द प्रॉफिट दैट वी हैव टू मेक इज 305x रुपीज. ठीक है, 12 kgs में जो मुझे अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट करना पड़ेगा दैट विल बी 305x. सो इन एवरी kg द प्रॉफिट मार्जिन शुड बी व्हाट? 305 by 12. देखो, एज आई हैव टू गेट टू द नियरेस्ट वैल्यू, तो 305 ना 12 से डिवाइड नहीं होता है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग इट 306. ओके, आई एम रफली राइटिंग इट इज 306. कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसीलिए यार, और कोई मकसद नहीं है मेरा. ठीक है, मेरा मकसद और कुछ नहीं है. ठीक है, मेरा मकसद है बस कैलकुलेशन यही है. आप लोग अपना मकसद नहीं भूलना है. सो अगर आप इसे 6 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 5 टाइम्स, दिस विल बी 1 टाइम्स, और अगर 2 से डिवाइड करोगे इट विल बी 25.5x. सो एक्चुअली ये 25.5 से थोड़ा कम ही होगा. ठीक है, क्योंकि एक्चुअली दिस वाज 305x. सो इन एवरी केजी आई वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ दिस मच. आई बॉट इट फॉर 100x एंड ऑन एवरी केजी मुझे 25 रुपीज का अप्रोक्सीमेट अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? विल इट बी 25%? यस. 100x का तो प्राइस था ना, द कॉस्ट प्राइस वाज 100x एंड ऑन एवरी केजी आई नीड अ प्रॉफिट ऑफ 25 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन हुआ? 25% का. देखो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का कैलकुलेशन नहीं है, बट अगर आप सही अप्रोच लेते हो तो, अगर आपका अप्रोच सही नहीं है तो हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. द हार्डर यू वर्क द स्मार्टर यू विल गेट, एंड एट द सेम टाइम द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट. ठीक है, आप जितना मेहनत करोगे ना आपको देखोगे वही क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, वही थ्योरीज मिलेगा, वही कंसेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, स्मार्ट वर्क बिना हार्ड वर्क के नहीं होती. सिर्फ ये सब बोलने की बातें हैं, बस सुनने में अच्छा लगता है. वाई टू डू हार्ड वर्क, विल बी डूइंग स्मार्ट वर्क. कर लो भाई स्मार्ट वर्क. जब तक आपको पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्मार्ट वर्क से ऐसे किया जा सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम कैट 2020. ओके, अनिल बाइज 12 टॉयज. ये तो मिस्टर एक्स वाला पेन है, दिख नहीं रहा. अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो उसने 12 टॉयज खरीदा और सभी का सेलिंग प्राइस उसने सेम लेबल कर दिया. ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट 20% डिस्काउंट. ठीक है, तो इस 8 टॉयज में ही हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20%. देन ही सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज एट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 25%. यानी जो बाकी के 4 टॉयज हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20% and then an additional discount of 25%. ठीक है, so in an article you are getting 2 discount, first discount of 20% and another discount of 25%. so effectively discount क्या होगा? मान लो 100 रुपीज का था, first discount will be of 20%, so it will become 80. then you will getting a discount of 25%, so it will become 60. यानी effectively आप बोल सकते हो 40% का डिस्काउंट है. या आप चाहो तो सक्सेसिव चेंज भी यूज कर सकते हो. -20, why I have written -20? क्योंकि ये भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज नेगेटिव. -25, why have I written -25? ये डिस्काउंट है. इट विल बी +20 into 25 by 100. 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में. ठीक है, तो क्या हो रहा है? -45 प्लस ये, सो -40. सो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? ओवरऑल देयर इज अ डिस्काउंट. ठीक है, माइनस आपको बस ये इंडिकेट कर रहा है ओवरऑल देयर इज अ डिस्काउंट. यानी 8 टॉयज वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड दीज 4 टॉयज आर इफेक्टिवली सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%. अब ये मत बोला 20 + 25 तो सर 45 होता है. ठीक है, आई हैव यूज्ड द सक्सेसिव चेंज, इसका सक्सेसिव निकालना है. देन ही सेल्स द रिमेनिंग 4 टॉयज. ओके, thus he gets a total of 2112 and makes a 10% profit. With no discounts his percentage of profit would have been. अच्छा ठीक है,
देखो अगर आप ध्यान से देखो ना तो इन वैल्यूज की ना कोई जरूरत नहीं। कभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और फाइनल आंसर्स अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप चाहो तो ये वैल्यूज यूज कर सकते हो, आंसर मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो आप बिना इन वैल्यूज के भी काम कर सकते हो, जरूरत नहीं कि मैं इन वैल्यूज का यूज करूं। अब ऐसे देखो, अगर 8 टॉयज आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 4 आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ये 40%, यानी इफेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, 2 पार्ट्स आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 1 पार्ट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40। सो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, अगेन यूज द ये क्या बोलते हैं उसे, एलिगेशन, ठीक है। 20 का डिस्काउंट मिला 1 में और 40% का डिस्काउंट मिला, सॉरी 20 का डिस्काउंट मिला 2 ऑब्जेक्ट्स में, 40 का डिस्काउंट मिल रहा है 1 ऑब्जेक्ट में। सो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, 20 इंटू 2 इज 80। अगर 20 रुपीज का राइस 2 kgs परचेज करना है तो यू विल बी पेइंग 40 रुपीज टू द शॉपकीपर ओनली। क्यों ये 80 दोगे भाई, सॉरी आ गया, ओके। सो अगर 20 रुपीज वाला राइस 2 kg परचेज करना है, सो यू विल बी पेइंग 40 रुपीज टू द शॉपकीपर। 40 रुपीज वाला राइस 1 kg परचेज करना है, 40 रुपीज दोगे, ओवरऑल कितना प्राइस हो रहा है 3 kg, सो इट विल बी 80/3। सो ओवरऑल डिस्काउंट, यानी अगर मैं ये दोनों डिस्काउंट्स को क्लब कर दूं, सो इफेक्टिवली द डिस्काउंट मार्जिन इज 80/3%, ठीक है। अब इन चीजों को इरेज कर देते हैं, इन चीजों की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखो कि कुछ आर्टिकल्स देयर वाज डिस्काउंट ऑफ 20%, ऑन सम आर्टिकल्स देयर वाज इफेक्टिव डिस्काउंट ऑफ 40%। सो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हो रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट इज ऑफ 80/3%, ठीक है। सो विदाउट गिविंग मतलब इवन दो इफ वी आर गिविंग ओवरऑल डिस्काउंट ऑफ 80/3%, स्टिल वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले आर्टिकल खरीदे, देन आई एम इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, so this will become the mark price, then I'm offering the discount on it and then I'm making certain profit। तो मैं कितने से प्राइस इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, इफेक्टिवली दैट वी डोंट हैव। सो लेट्स अज्यूम दिस इज ए, देन वी आर ऑफरिंग इफेक्टिवली कितने का डिस्काउंट है, 80/3 का डिस्काउंट है, एंड ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का। यूज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव चेंज, इट विल बी ए, ठीक है, -80/3। वाई -80/3, ओवरऑल सॉरी ये नेगेटिव है, डिस्काउंट है, -80/3 इंटू ए, ओके, डिवाइड बाय 100, एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल्स टू 10, राइट। सो 4/5 is there, so it will be 15, so it will be 11a/15, और अगर इधर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 110/3, राइट, 30 एंड, ठीक है, 11 एंड ये स्वाहा हो जाएगा, 10 बचेगा सिर्फ, 3 और ये 5 बचेगा। सो ए इज व्हाट, ए इज 50%। यानी हमने क्या किया, हमने इसको मार्कअप किया हुआ है कितने परसेंट से, 50%। तो अगर इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट्स, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दोगे आप, तो कितने का प्रॉफिट होने वाला है, देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 50%। इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड एट ऑल, ठीक है, देयर इन वी विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मतलब मैं अंदर से वेट कर रहा था कब 23 आएगा, 23 आएगा, एंड आई सो कि हाँ चलिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम कैट 2023 एंड दैट आई वाज सेइंग, सो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ फॉल्टी बैलेंस। सो फॉल्टी बैलेंस के क्वेश्चंस अगर आपके पास प्रॉपर कंसेप्ट नहीं है ना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे सिनारियोज हैं और इतने सारे सिनारियोज देखकर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे, ठीक है, बोले अरे भैया ई का हो गया। चलो देखते हैं। सो कुछ खास नहीं करना हमें, ठीक है। व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी सिंपली राइटिंग द रेशियो ऑफ CP/SP फॉर ईच केसेस सेपरेटली। हमें सिर्फ और सिर्फ CP/SP का रेशियो लिखना है फॉर ईच एंड एवरी केस। तो कौन कौन से केसेस हैं, एंड एवरी केस विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेटली, अज्यूमिंग कि और कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो भी केसेस हैं आपको सेपरेटली अज्यूम करने हैं। क्या बोला मैंने, जैसे अब मर्चेंट परचेज अ क्लोथ एट ₹100 per meter
and receives 5 centimeter of length cloth free for every 100 centimeter length of cloth purchased by him. ठीक है, मतलब अगर वो 100 सेंटीमीटर क्लॉथ खरीदने जा रहा है, उसको 105 सेंटीमीटर क्लॉथ मिल रहा है. He sells the same cloth at a rate of 110 per meter, but cheats his customer by giving 95 centimeter length of the cloth for every 100 centimeter of the cloth. लेकिन अगर कोई कस्टमर उसके पास आ रहा है, so what he is doing, if the customer is asking him 100 centimeter of cloth, he is giving him 95 centimeter of length of the cloth only. ठीक है, यानी वहां पर 5 सेंटीमीटर का ये कर दे रहा है, धोखा. ठीक है, तो आप इसका नाम धोखा रख सकते हो. If the merchant provides 5% discount, the resulting profit earned by him is what? So first of all, ये देखो, he purchased it for 100 rupees per meter and he is selling for 110. यानी अगर और कोई सिनेरियोज ही नहीं होता, ठीक है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, डिस्काउंट है और कुछ नहीं होता, सिंपली ही हैज परचेज्ड फॉर 100 एंड ही विल बी सेलिंग इट एट 110, तो उस केस में सीपी अपॉन एसपी क्या होता है, रेशियो, इट विल बी 100 अपॉन 110. ठीक है, he purchased it for 100 rupees and is selling for 110. Next, he receives 5 centimeter length of cloth free for every 100 centimeter length of cloth. इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट गया, ठीक है, और उसके पास जो पैसा था, इन दैट मनी ही कुड हैव बॉट ओनली 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ. वॉट एवर मनी ही हैड, उससे वो सिर्फ 100 सेंटीमीटर का क्लॉथ खरीद सकता था. लेकिन इन दैट मनी ही इज गेटिंग 105 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ, यानी वो अपने कस्टमर से 105 का प्राइस मांग कर सकता है. द मनी दैट ही इज बियरिंग इज ऑफ ओनली 100 सेंटीमीटर, बट द क्लॉथ दैट ही विल बी गेटिंग इज ऑफ 105 सेंटीमीटर. मतलब वो अपने कस्टमर से किसका चार्ज करेगा, ही विल बी चार्जिंग द रेट ऑफ 105. सो ही इज बियरिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ ओनली 100 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ, बट द सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट, इट विल बी ऑफ 105 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट, he sells the same cloth, हो गया, but cheats his customer by giving 95 centimeter length of cloth for every 100 centimeter length of the cloth. इसका मतलब क्या है, if a customer came to him and asked him, भैया 100 centimeter कपड़ा दे दो, so what he'll do, he'll not give him 100 centimeter of the cloth, he'll be just offering him or just giving him 95 centimeter of the cloth. तो आप being a shopkeeper के point of view से सोचो, अगर आपको मैंने सिर्फ 95 सेंटीमीटर का क्लॉथ दिया, सो मैं किस चीज का कॉस्ट प्राइस बियर कर रहा हूं, वेदर आई एम बियरिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्लीट 100 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ और ओनली 95 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ. अगर मैं सिर्फ 95 सेंटीमीटर का कपड़ा आपको दे रहा हूं, इट मींस दैट आई एम बियरिंग द प्राइस ऑफ ओनली 95 सेंटीमीटर्स. बट व्हाट अमाउंट ऑफ मनी आई एम चार्जिंग टू यू, आई एम चार्जिंग यू द प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर. मैंने आपको बोला कि आप मुझे 100 सेंटीमीटर का प्राइस दो, सो द सेलिंग प्राइस विल बी ऑफ 100 सेंटीमीटर. If the merchant provides a discount of 5%, 5% डिस्काउंट में क्या होता है, 5% डिस्काउंट का मतलब ये है कि सपोज आई बॉट द आर्टिकल फॉर 100 रुपीज बट आई एम ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज, मतलब आई विल बी चार्जिंग ओनली 95 फ्रॉम यू. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं. ये 95 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, 0 कैंसिल. ओके, दिस विल बी 20 टाइम्स एंड दिस विल बी 21 टाइम्स. सो इफेक्टिवली व्हाट वी कैन से, CP upon SP is what? It's 200 upon 231. Means we are buying it at 200 rupees and we are selling it for 231. तो अगर मैं 100 का खरीदता तो कितने का बेचता, 115.5, यानी 15.5 का परसेंटेज का प्रॉफिट है. या अगर आपको फॉर्मल ये में करना है, द प्रॉफिट अमाउंट इज ऑफ 31 रुपीज, we bought it for 200 and the merchant is selling for 231. The cost price that he is bearing is of 200 rupees, and in order to get the percentage, multiply by 100. So it will be what? It will be 15.5%. Again, ठीक है, one liner. अगर एग्जाम में मेरे को करना होता ना, it would have been a one liner for me. So this was question number 10 from CAT 2023. Next we have question number 11 from CAT 2023 again. A very beautiful question, ठीक है. Meenu purchases a pair of sunglasses at ₹1000 and sells to Kanu at 20% profit. ठीक है, so Meenu has purchased it for 100 rupees, for 1000 rupees, and he sold to Kanu with 20% margin. So it means that Kanu is buying it for 1200 rupees. So this is the cost price that Kanu is bearing.
ठीक है, कनु ने कितने में खरीदा है, 1200 रुपए में. देन कनु सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस. नाउ कनु इज सेलिंग इट बैक एट 20% लॉस. तो अगर 20% लॉस यानी इसका 20% सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी 240 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो. इट मीन्स दैट कनु इज सेलिंग इट टू मीनू बैक. ठीक है, कनु इज सेलिंग इट टू मीनू बैक एट अ प्राइस ऑफ 960 ओनली. ठीक है, मीनू ने इसको वापस खरीद लिया कनु से एट अ प्राइस ऑफ 960. फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सन ग्लासेस टू तनु. नाउ मीनू इज सेलिंग दिस ग्लासेस टू तनु. If the total profit made by Meenu from all her transactions is rupees 500. Okay, very good. देखो, the profit that Meenu had made in this transaction, इस transaction में कितने का profit हुआ था, 200 rupees का. And overall profit is of 500 rupees. यहां पर आपको 200 rupees का profit हुआ है and overall profit is 500. It means that when she is selling the glasses to क्या तनु, the profit margin would have been 300 rupees. मीनू जब तनु को सनग्लासेस बेच रही है ना, द प्रॉफिट मार्जिन इन दैट केस विल बी व्हाट, इट विल बी 300 रुपीज. ओके, नेक्स्ट, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु. नाउ व्हेन मीनू इज सेलिंग इट टू तनु, द प्रॉफिट मार्जिन इज 300 रुपीज एंड द कॉस्ट प्राइस दैट नाउ मीनू इज बियरिंग इज ओनली 960 रुपीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Earlier the cost price that Meenu was bearing was 1000 rupees. लेकिन एक बार वो सारा ट्रांजैक्शन हो गया ना, so now the cost price that Meenu is bearing is only 960. So this is your effective cost price. It means that a product which was of 960, ठीक है, was sold, ठीक है, making a profit of 300 rupees. So what is the profit percentage? Profit percentage will be what? 300 rupees का profit हुआ है, 960 rupees का cost price है. परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. 0 0 कैंसिल हो गया. 3 के टेबल में दिस इज 10 टाइम्स, 3 के टेबल में दिस इज 32 टाइम्स. सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1000 बाय 32. ओके, तो 32 अगर आप 32 इंटू 30 करोगे ना, ठीक है, 32 इंटू 30 नहीं, ऐसे भी देख सकते हैं. ठीक है, क्या करना था, वन वे इज यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट. ठीक है, 1000 को 32 से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा. या अगर आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा, व्हेन 33 इज मल्टीप्लाइड बाय 30, ओके, आई विल हैव 990 अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, सो अगर मुझे इसके आसपास नंबर चाहिए, जैसे या इसको अगर मैं स्पेसिफिकली ऐसा लिखूं, I can say that when 33.3 is multiplied by 30, okay, the value will be getting is approximately 999, यानी approximately 1000 I'll be getting. तो अगर ये 32 हो गया है, मतलब अगर ये रिड्यूस हुआ है, अगर ये वाला वैल्यू रिड्यूस हुआ है, सो डेफिनेटली ये वाला वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा. यानी 32 इंटू समथिंग, यानी वॉट एवर योर आंसर विल बी, अगर आपको इसको नियर 1000 के आसपास लेकर आना है, सो इट शुड बी स्लाइटली मोर देन 30. तो स्लाइटली मोर देन 30 मेरे पास क्या ऑप्शन है, 31.25%. आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर लो. व्हेन यू विल डिवाइड बाय 32, इफेक्टिवली यू विल बी गेटिंग 31.25%. Okay, so this was question number 11. Moving towards the last question of the day, again we have question number 12, CAT 2023 kai. So this is, I think, from the first lot. The question says that Geeta sells two objects. Geeta sells two objects A and B at the same price. Means it is saying that the selling price of the two objects are same. Okay. Such that she makes a profit of 20% on object A. तो object A है, ठीक है, I am writing CP and I am writing SP. Object A is sold at a profit of 20%. So 20% का profit कब होता है? When an object will be of 5 rupees and is sold at 6 rupees. 5 rupees के आर्टिकल को अगर आप 6 rupees में बेचोगे, definitely will be making a profit of 20%. और सेकेंड में क्या हो रहा है? And a loss of 10%. So 10% का loss है, what does it mean? 10 rupees का आर्टिकल was sold at 9 rupees. 10 rupees article was sold at 9 rupees. So there is a loss of 10%.
बट इज माई सेलिंग प्राइस सेम? यहां पर सेलिंग प्राइस 6 है, यहां पर सेलिंग प्राइस 9. द क्वेश्चन सेड दैट बोथ द सेलिंग प्राइस शुड बी सेम. सो व्हाट आई एम डूइंग, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 2, दिस बाय 3 एंड दिस बाय 2. सो इफेक्टिवली अब आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ऑफ ए एंड बी? सो इट विल बी 15 and it will be 18, it will be 20 and it will be 18. So now my both the selling prices are same. अब मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी. ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? 18 है. सो वॉट एवर वॉज द डिजायर्ड कंडीशन वो फुलफिल हो गया. नेक्स्ट, इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस. सो शी इज इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस एंड अगेन जितना इंक्रीमेंट बी पे हो रहा है उतना ही इंक्रीमेंट ए का भी होगा, यानी बोथ द सेलिंग प्राइस शुड बी सेम अगेन. एंड द प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी. तो ऑब्जेक्ट बी अगर 20 रुपीज का है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेट 10% प्रॉफिट? तो अगर मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, आई विल बी सेलिंग इट फॉर 22. सो द न्यू सेलिंग प्राइस शुड बी 22 रुपीज. देन ओनली विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 22 रुपीज, 10%. तो अगर इसका सेलिंग प्राइस 22 है तो इसका भी सेलिंग प्राइस 22 होना चाहिए. सो हाउ मच प्रॉफिट वन इज मेकिंग इन द प्रोडक्ट ए? प्रोडक्ट ए इज परचेज एट 15 रुपीज एंड इज बीइंग सोल्ड एट 22 रुपीज. कॉस्ट प्राइस 15 है एंड इज बीइंग सोल्ड एट 22. सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट मार्जिन और द प्रॉफिट परसेंटेज? इट विल बी 7/15 into 100. 15 के टेबल में दिस इज 20 टाइम्स एंड दिस इज 3 टाइम्स. सो विल बी राइटिंग इट विल बी 140/3. इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं. 12 यानी 4, 20 यानी, सो इट विल बी 46.66% एंड नियरली वी कैन से इट विल बी 47%. सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज, इट वाज 47%. सो वी डिड ऑल द 3 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कैट 2023. स्लॉट 1 का, स्लॉट 2 का और स्लॉट 3 का. आई एग्री, कैट 2023 का पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन थे किसी भी स्लॉट के, वाज इट डिफिकल्ट? नो. ऑन एनी डे और इन एनी एग्जाम द क्वेश्चंस वर डुएबल. तो हमें कोशिश ये नहीं करना है कि हाँ हम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लें, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो इजी क्वेश्चंस है ना वो स्किप ना हो. ऑलराइट, सो विद दिस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू. बट बिफोर आई टेक अ लीव, ठीक है, if you want more such videos please subscribe to the channel. Okay, the link will be there in the description. And whatever videos you want, ठीक है, जैसे आपको लगता है कि this is a very difficult topic या इसके questions नहीं हो रहे, अगर ऐसा कोई भी ऐसा chapter if you feel कि these are the difficult chapters, just give a comment on the comment box. Okay, we'll be taking video on that chapters also. Okay, so with this I'm signing off. Let's meet for the next lecture. But before I go, ठीक है, always remember a very simple line. What simplifies is what amplifies. जो चीज़ों का आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, आप उससे बहुत मतलब उससे मोस्ट आउट ऑफ निकाल सकते हो. लेकिन अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप उससे 100% एफिशिएंट नहीं हो वो आपके लिए. ऑलराइट, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड एवरीवन.